Welcome again, young learners, to our this part of the video series where we are completing the macroeconomics. हमने अपने previous 2 videos में यूनिट 3 मैक्रोइकोनॉमिक्स की है, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के मीनिंग को लिया है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को लिया है. आज उसी की कंटिन्यूटी में आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज कंजम्पशन एंड द कंजम्पशन कर्व. तो लेट्स स्टार्ट इट. We have the next topic as consumption and consumption curves. We know that the consumption is that part of the income which is spent on the purchase of goods and services. यानी कि goods and services को purchase करने में जो हमारी income का हिस्सा खर्च हुआ है that is known as consumption. Consumption is that portion of income which is spent on the purchase of goods and services at some level of income. That means income के किसी भी level पर, supposingly the level of income is 20, the consumption happens to be 30 or the consumption happens to be 15. So that is the consumption at a particular level of income. Basically when we talk about the consumption function, जब हम consumption function की बात करते हैं, the function always shows the functional relationship of the concept with the determinant factor. यानी कि कॉन्सेप्ट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कंजम्पशन है. इसका मतलब है कि कंजम्पशन फंक्शन शो करता है कि कंजम्पशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो कंजम्पशन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप between consumption and its determinants. Determinants implies the factors which determine the level of consumption. वो factors जो कि consumption का level determine करते हैं. Basically यदि देखा जाए तो consumption is dependent upon, यदि normally देखा जाए तो consumption जो है किसका function है? Income का function है. Consumption is the function of income. इसका मतलब क्या है कि consumption is related with the level of income and that is correct. That is, how would we say this? यदि income बढ़ेगी, if the income rises, the level of consumption will also rise. यदि income बढ़ेगी तो consumption का level भी बढ़ेगा. And if the income is less, the consumption will also be less. So this is the relationship between the income and the consumption. One factor increases, the another also increases. One factor decreases, the another factor also decreases. That means there exists the direct relationship. यानी कि कौन सा relationship ये justify करता है? Direct relationship justify करता है. यानी कि जो इनकम और कंजम्पशन है उसमें कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है. दैट मीन्स वन इज इंक्रीजिंग, द अनदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वन इज डिक्रीजिंग, द अनदर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द कंजम्पशन फंक्शन, यदि नॉर्मली हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करें, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम. कंजम्पशन किस पर डिपेंड करता है? इनकम पर डिपेंड करता है. With this, we are moving towards the psychological law of consumption. The fundamental psychological law of consumption भी कहते हैं हम इसे, और इसके साथ साथ हम इसे जेम कीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं. देखिए हमारे पास एक वर्ड आ रहा है साइकोलॉजिकल लॉ. साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजी, यानी कि किस पर डिपेंडेंट है? साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट है. The law states that this law first was propounded by J.M. Keynes. Was an economist. He was an economist and he propounded the psychological law of consumption. Psychological law of consumption, जब भी हम किसी law की बात करते हैं, whenever we talk about any law, the law has its statement. law की क्या होती है? statement होती है, यानी कि law क्या कहता है? The law says, according to J.M. Keynes, there are two things with the consumption.
कंजम्पशन के साथ दो बातें एसोसिएटेड है। पहली बात ये कि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू जेम कीन्स, व्हेन द लेवल ऑफ इनकम राइजेस, the consumption also tends to rise, and that is what is the psychology of the people. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। along with this he says, लेकिन उनका ये मानना था, या अकॉर्डिंग टू हिम द साइकोलॉजी इज, इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन तो बढ़ेगा, बट परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो इनकम जो बढ़ी वो 10% बढ़ी, देयर इज अ राइज इन द इनकम बाय 10%, बट द कंजम्पशन इंक्रीजेस, यस कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, 8% बढ़ा। इसका मतलब ये है दैट द पीपल एज द इनकम राइजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है द पीपल हैव द टेंडेंसी टू सेव, लोगों की सेविंग की भी टेंडेंसी होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, और इस रीजन की वजह से जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, बट इट विल इंक्रीज बाय अ स्मॉलर प्रोपोर्शन दैट टू इंक्रीज इन द इनकम। दैट इज व्हाट द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इनकम इंक्रीज होने के साथ कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन जो कंजम्पशन का इंक्रीज है वो इनकम के इंक्रीज से कम रहेगा। दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द जेएम कीन्स। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? प्रोपेंसिटी शोज द टेंडेंसी। प्रोपेंसिटी क्या शो करती है? टेंडेंसी को शो करती है कि हम किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। देखिए, सपोजिंगली मैंने इकोनॉमी में अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम ले लिए, ठीक है, वी हैव टेकन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। कुछ लाइंस ले लेते हैं पहले और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी के। इनकम ले लिया, कंजम्पशन ले लिया। इनकम इज 0, 10, 20, 30, 40, बस यहीं तक लिया। कंजम्पशन इज 10, 15, 20, 25 and 30. Various levels of consumption has been taken. Propensity to consume shows कि different levels of income पर क्या कंजम्पशन है। इट इज़ अ स्केड्यूल, हम ध्यान रखेंगे, इट इज़ अ स्केड्यूल, यानी कि एक ऐसा स्केड्यूल है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इनकम के अलग अलग लेवल्स पर कंजम्पशन क्या है। जैसे व्हेन द इनकम इज 10 द कंजम्पशन इज 15, व्हेन द इनकम इज 30 द कंजम्पशन इज 25 एंड सो ऑन। तो यदि कोई पूछे अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल व्हाट इज द कंजम्पशन एट 20 व्हेन द इनकम इज 20, जब इनकम 20 है तो कंजम्पशन कितना है? 20 है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ स्केड्यूल, दिस शोज, क्या शो करता है? द कंजम्पशन एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। सो वी हैव टू कीप दिस इन अ माइंड कि propensity to consume is a schedule or a table that shows the consumption corresponding to various levels of income. इसके बाद हमारे पास जो आता है that is the propensity to consume के जो types है वो क्या है? What are the types of propensity to consume? Basically propensity to consume के हमारे पास दो types आते हैं। Average propensity to consume which is commonly written as APC, जिसे normally हम APC लिखते हैं, and marginal propensity to consume which is commonly written as MPC, जिसे normally बोला भी MPC जाता है और लिखते भी हम MPC। So propensity to consume is a schedule, don't forget, ये क्या है? Schedule है, ठीक है। और इसके दो types हैं, average propensity to consume and marginal propensity to consume. Now we are moving towards the average propensity to consume. देखें, the average propensity to consume is the ratio of consumption to income, यानी कि क्या है? consumption और income का रेशो है, ध्यान रखेंगे। the average propensity to consume, क्या है average propensity to consume? is the ratio of consumption to
इनकम, कंजम्पशन और इनकम के रेशो को हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। इनकम के अलग अलग लेवल्स पर जो भी C/Y होगा दैट इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बच्चे कॉमनली कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नथिंग बट अ schedule that shows the consumption at various levels of income, that's it. When it comes to APC, it is the ratio of consumption to income, यानी कि ये क्या है, कंजम्पशन और इनकम का रेशो है at various levels of income। इसे एक schedule के थ्रू करते हैं। सपोजिंगली हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको कंप्लीट करते हैं। सपोजिंगली वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी आर 0, 10, 20, 30। ये हमारे पास अलग अलग लेवल्स है इकोनॉमी में इनकम के। द कंजम्पशन हैपन्स टू बी एट दीज लेवल्स। हम उसी टेबल को लेंगे जो हम पहले लेकर चल रहे थे, 10, 15, 20 एंड 25। एक और ले लेते हैं, 40, 30। दीज आर द वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। ये क्या है, अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम है जिस पर हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन को शो किया है। नाउ वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। कंजम्पशन और इनकम का जो रेशो है दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो हियर इट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 10, here it will be 20 upon 20, this is 25 upon 30 and this is 30 upon 40 at various levels of income. So when we calculate this, जब हम इसे calculate करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, the answer is 1.5, 1, 0.83 and this is 0.7. 5 will be the ratio of consumption to income at various levels of income. So this is what the average propensity to consume, ये हमारे पास आता है average propensity to consume। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस को करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वेरी इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं वो किस में कटते हैं, MCQs में कटते हैं। सो वी हैव टू कीप ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन आवर माइंड एंड नाउ वी आर डूइंग सर्टन 1 मार्क क्वेश्चंस विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ APC के ऑब्जर्वेशन से कुछ MCQs करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास आता है, जो पहला ऑब्जर्वेशन है, हम देख रहे हैं इनकम के बढ़ने के साथ साथ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो एज इनकम राइजेस द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स, यानी कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम राइजेस, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टेंड्स टू फॉल। द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ से मैं 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहला आता है APC इज ग्रेटर देन 1, कब होगा। सेकेंड इज APC इज इक्वल टू 1, कब होगा। एंड थर्ड इज APC लेस देन 1, कब होगा। हमारे पास 3 सिचुएशंस है, APC ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 1। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 से ज़्यादा वाला सेक्शन ले लेते हैं, 1 के इक्वल वाला ले लेते हैं और 1 से कम वाला ले लेते हैं। ये हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग सेक्शंस में इसको डिवाइड कर देते हैं। अब APC ग्रेटर देन 1 कब है, वी कैन सी द APC इज ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, यानी कि APC 1 से ज़्यादा कब होगा, जब व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। APC इक्वल्स टू 1 कब है, जब कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल है, व्हेन
consumption is equal to income, and APC is less than 1 when the consumption is less than income. So when consumption is less than income, the APC happens to be less than 1. So these three are very very important observations from the point of view of the MCQs. अब एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कह लीजिए या एक और इम्पॉर्टेंट आउटकम कह लीजिए इसका, दैट इम्पॉर्टेंट आउटकम इज, इसका एक और इम्पॉर्टेंट आउटकम है वो क्या है, देखें, APC इज नेवर इक्वल टू 0. APC कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होगा? बिकॉज APC इज इक्वल टू C अपॉन Y, और किसी भी फ्रैक्शन के 0 होने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन को 0 होने के लिए ज़रूरी है कि उसका न्यूमरेटर 0 हो, राइट? लेकिन हम जानते हैं न्यूमरेटर यानी कि C कभी भी 0 नहीं होता. देयर रिमेन्स some level of consumption even when the income is 0, which is commonly known as autonomous consumption. So APC is never equal to 0 because APC is equal to C upon Y and there remains, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर, पहले ये लिख सकते हैं इसमें, and C is never equal to 0, there remains some कंजम्पशन, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इवन व्हेन इनकम इज 0. ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा ही जब इनकम 0 है. तो दीज आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फिर ग्रेटर देन 1 कब होगा, इक्वल्स टू 1 कब होगा, लेस देन 1 कब होगा, एंड APC will never be equal to 0. So these are certain relationships between the income and the average propensity to consume. Now we are moving towards the next type. As we have done, दो types हैं इसके, average propensity to consume और marginal propensity to consume. So now we will be doing the second type. This is the marginal propensity to consume. जो second type हमारे पास इसके अंदर आता है वो कौन सा आता है, marginal propensity to consume. The marginal propensity to consume is the ratio of change in consumption to change in income. यानी कि ये किसका रेशो है, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का. APC किसका रेशो था, कंजम्पशन एंड इनकम का. ये है किसका, MPC इज द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, और इकोनॉमिक्स में हम चेंज को डेल्टा साइन से शो करते हैं. तो चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम. इनकम के अलग अलग लेवल्स पर MPC is equal to the ratio of change in consumption to change in income. तो अब इसे हम एक स्केड्यूल के थ्रू करते हैं. लेट अस डू इट विद अ स्केड्यूल, हेल्प ऑफ अ स्केड्यूल. तो स्टार्ट करते हैं. देखें, हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन को लेंगे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. देखें, द वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम आर, सेम टेबल हम लेंगे. इससे फ़ायदा ये होता है कि वी नीड नॉट टू रिकॉल द वैल्यूज़ अगेन एंड अगेन. एक ही वैल्यू को करते करते हमें प्रैक्टिस हो जाती है और इसलिए ये हमारे लिए आसान भी हो जाता है. नाउ वी विल बी डूइंग द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम. यहाँ पर हमारे पास कंजम्पशन का चेंज है 15 माइनस 10 इज 5. इनकम का चेंज है 10. यहाँ कंजम्पशन का चेंज है 5. यहाँ कंजम्पशन का चेंज है 10. इनकम का चेंज है 10. यहाँ कंजम्पशन का चेंज है 5. यहाँ इनकम का चेंज है 10. अगेन 5. अगेन 10. सो व्हेन वी कैलकुलेट इट, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, it results into 0.5
एट ऑल द लेवल, सभी लेवल पर ये 0.5 हमें दिखाई दे रही है। बेसिकली द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हैज़ ओनली वन ऑब्जर्वेशन। नॉर्मली यदि हम बात करें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का केवल एक ही ऑब्जर्वेशन है कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। इसका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब ये हमने कह दिया कि भाई MPC 0 के इक्वल नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा, बल्कि इसकी वैल्यू जो है 0.1 से 0.9 के बीच में वेरी करेगी। पर इसके पीछे रीज़न क्या है कि MPC एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं हो सकता, MPC एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं हो सकता, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और मैं बता दूं कि MPC को जनरली डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर b से। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज जनरली डिनोटेड विद द लेटर b। ये हमें याद रखना है क्योंकि आगे हमारे काम आएगा, तो हमें याद तो रखना ही है। नाउ सबसे पहले हम करते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ एक कंडीशन ले ली कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 के इक्वल है। क्यों नहीं हो सकता ये हमें शो करना है, तो मैंने कंडीशन ले ली कि भाई ये 0 के इक्वल है। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यदि 0 के इक्वल है, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं MPC इज चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी फ्रैक्शन का 0 आने का मतलब है कि उसका न्यूमरेटर 0 है, राइट। तो MPC इज इक्वल टू चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, एंड if MPC is equal to 0, it shows, ये क्या शो करता है? It shows that change in C is 0. Change in C is 0 का मतलब है कि entire additional income in the economy has been saved, यानी कि कुछ भी खर्चा additional income में से नहीं किया गया है। But इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अभी अभी हमने जेम कीन्स का लॉ किया विच सेज दैट विद एवरी इंक्रीज इन इनकम देयर विल बी एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन। यदि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है कि चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू 0 हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज according to जेम कीन्स क्या कहते हैं कि इनकम राइजेस द कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस। दैट मीन्स इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दैट मीन्स कि विथ एवरी चेंज इन इनकम देयर विल बी अ चेंज इन द कंजम्पशन, एंड दैट इज वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल कि MPC 0 के इक्वल हो। तो पहला सेक्शन हमने कर लिया कि MPC 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इफ MPC इज इक्वल टू 0 इट सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई करता है कि कंजम्पशन, जो चेंज इन कंजम्पशन है वो 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या आता है कि MPC जो है वो 1 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता। तो अपन ने कंडीशन सेकेंड ले ली है कि MPC इज इक्वल टू 1 है सपोजिंगली। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है, हम जानते हैं MPC इज इक्वल टू चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y के इक्वल है। एंड इफ समथिंग, सम फ्रैक्शन इज रिजल्टिंग इनटू 1, यदि कोई फ्रैक्शन 1 में आ रहा है तो इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो दैट इज इफ MPC इज इक्वल टू 1, इट शोज, क्या शो कर रहा है? चेंज इन C इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, यानी कि दोनों बराबर है तभी 1 आएगा। दैट इज entire additional income
हैज़ बीन कंज्यूम्ड, यानी कि जितनी एडिशनल इनकम हुई थी वो क्या हो गई है, कंज्यूम हो गई है। और एंटायर एडिशनल इनकम कंज्यूम हो गई है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिंगल पर्सन के लिए हो सकता है, पूरी इकोनॉमी के लिए नहीं हो सकता। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो, इट इज स्टडिंग द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो इट शोज दैट एंटायर एडिशनल इनकम हैज बीन कंज्यूम्ड, बट अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, लेकिन जेएम कीन्स का कहना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम, यानी कि इनकम बढ़ने पर, एडिशनल इनकम बढ़ने पर एडिशनल कंजम्पशन होगा, लेकिन उसका जो रेट है वो इनकम के बढ़े हुए रेट से कम होगा। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है। नीदर इट इज़ पॉसिबल कि एमपीसी 0 हमने कर लिया है, ना ही ये पॉसिबल है कि एमपीसी बेसिकली इक्वल्स टू 1 हो, क्योंकि दोनों ही केसेस में द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ जेएम कीन्स फेल। कंडीशंस अलग अलग है। पहले वाले में तो कौन सी कंडीशन फेल हो जाती है, ये वाली, और दूसरे वाले में ये फेल हो जाती है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज द कंजम्पशन फंक्शन। बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन को हम किसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं? द कंजम्पशन फंक्शन में ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमने हालांकि पहले जो किया था, लेट मी शो यू, एक बार देखते हैं। हमने जो कंजम्पशन के बारे में बात की थी, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात की थी, हमने यहाँ पर किया था कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ये हम लोगों ने किया था कि कंजम्पशन बेसिकली किससे रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है। ये हमने एक फंक्शन किया था एंड वी कैन नॉट डिनाई विद दिस फैक्ट। लेकिन हम कंजम्पशन फंक्शन को एक तरीके से और एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? सी बार प्लस बी वाई, और अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बी हमारे पास क्या आता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। सो बी इज नथिंग बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये हमें क्या शो करता है? सी बार इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार हमारे पास क्या आता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन आता है, ये हमें पता है। तो इट शोज सी बार प्लस बी वाई, यानी कि इनकम के अलग अलग लेवल्स पर जो भी हमारी कंजम्पशन होगा वो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंड करेगा, एंड देयर विल ऑलवेज रिमेन सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो रहेगा ही रहेगा, और इनकम के अलग अलग लेवल्स पर कंजम्पशन हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंड करेगा। बेस्ड ऑन दिस we are taking an example where C bar is equal to 10, that is autonomous consumption is equal to 10, MPC 0.5, और हम अलग अलग levels of income को लेंगे। We will take the various levels of income। देखें, मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ, and then we will be making the consumption, जो हमारा कंजम्पशन है उसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। इनकम इज गिवन विच इज 0, 10, 20, 30, 40। सपोजिंगली हमने ये लेवल्स ऑफ इनकम ले लिए। हम देख रहे हैं एमपीसी 0.5 है और सी बार इज इक्वल टू 10। हम जानते हैं कि अभी हमने किया C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी बहुत काम आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब यदि मुझे कंजम्पशन फंक्शन को डेराइव करना है, इफ़ आई नीड टू डेराइव द कंजम्पशन फंक्शन नाउ, तो दिस इज इक्वल टू, द कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, अब सी बार की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 10, प्लस बी कितना है? 0.5, और y हमारे पास कितना है? 0। ये हमने अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम अपनी तरफ से एज्यूम किए हैं। सिमिलरली 10 प्लस 0.5 इंटू 10, ये वैल्यू रख दी।
Similarly, 10 plus 0.5 into 20, 10 plus 0.5 into 30 and 10 plus 0.5 into 40. We have put the values in the equation. इस equation में हमने values को put कर दिया है. अब हम calculate करेंगे the value of C. यहाँ से हम C की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. 0 प्लस 0.5 ऑफ 0 विल रिजल्ट इन 2. ये अपने पास 10 प्लस 0.5 ऑफ 0 आएगा तो कितना आया 10, 5, 15, देन इट इज 20, देन इट इज 25, देन इट इज 30. तो इस इक्वेशन के बेसिस पर जो हमने कंजम्पशन फाइंड आउट किया है वो ये है, विच इज अगेन सेम द टेबल वी वर टेकिंग. जिस टेबल को हम लेकर चल रहे थे वो इसी तरीके का है. तो दिस शोज अस कि कंजम्पशन कुड बी डिराइव, द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन कुड बी डिराइव विद दिस फंक्शन. और ये फंक्शन क्या कहता है कि देयर वुड ऑलवेज रिमेन सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो रहेगा ही, एंड अलॉन्ग विद दैट द इंक्रीज इन कंजम्पशन अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन इनकम. ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन कंजम्पशन along with increase in income depends upon MPC. किस पर डिपेंड करता है, MPC पर डिपेंड करता है. दैट इज हायर द MPC, जितना खर्च करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, दैट इज हायर द MPC, मोर इज द कंजम्पशन. और वाइस वर्सा, या इसके विपरीत होगा. ठीक है, तो ये हमें कंजम्पशन फंक्शन शो करता है. नाउ वी हैव द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व. कंजम्पशन कर्व का स्लोप हम कैसे मेजर करते हैं, पर कंजम्पशन कर्व का स्लोप मेजर करने से पहले हम इसी टेबल के बेसिस पे या नॉर्मली एक क्या लेते हैं, कंजम्पशन कर्व लेते हैं. The various levels of income will be taken on x-axis and the consumption will be taken on y-axis. 10, 20, 30, 40. ये आपके पास अलग अलग वैल्यूज हैं. ठीक है, फिर हमारे पास आता है 10. We have taken the various levels of consumption. अलग अलग कंजम्पशन के लेवल को लिया है. तो एक बार देख लेते हैं. 0 पर 10 है, 10 पर 15. ठीक है, तो देखें, यस, तो 0 जब है तो ये हमारे पास 10 है. व्हेन द इनकम लेवल इज 0, जब इनकम का लेवल क्या है, 0 है, इट इज 10. इनकम राइजेस टू 10, इट राइजेस टू 15. 20 पर ये 20 था, 30 पर 25 और 40 पर इट वाज 30. द कंजम्पशन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. कंजम्पशन कर्व क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा. यदि मैं इसी को इनकम के साथ एसोसिएट करूं तो आई विल ड्रॉ एन इनकम लाइन, एंड एज वी नो दैट द इनकम लाइन इज 45 डिग्री लाइन. हमने किया है, इनकम लाइन 45 डिग्री की लाइन होती है जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हियर y इज इक्वल टू c. ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कंजम्पशन कर्व पे आपको शो करना है. y इज इक्वल टू c विच इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. एंड हियर द वैल्यू ऑफ APC इज इक्वल टू 1. यहाँ पर APC की वैल्यू 1 के इक्वल होती है. और दो वैल्यूज को हम शो करेंगे. The value of APC here will be greater than 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन जो है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ APC will be less than 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम. कंजम्पशन जो है वो इनकम से कम होगा. जो ये वाला प्रोपोर्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ APC विल बी ग्रेटर देन 1 सिंस द कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम. क्योंकि कंजम्पशन क्या होगा,
इनकम से ज़्यादा होगा। तो 3 वैल्यूज़ हम देख रहे हैं, APC ग्रेटर देन 1 वी हैव शोन ऑन द ग्राफ, APC इक्वल्स टू 1 एंड APC लेस देन 1, ये तीनों वैल्यूज़ हमने ग्राफ पर शो कर ली हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे कंजम्पशन कर्व की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास कंजम्पशन जो है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व आता है। द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज, द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज, वी नो, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी कर्व का जब हम स्लोप मेजर करते हैं, द स्लोप ऑफ एनी कर्व इज, स्लोप ऑफ अ कर्व इज measured as vertical change divided by horizontal change, यानी कि किसी भी कर्व के स्लोप को वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज से मेजर किया जाता है। मेजरमेंट का मतलब है कि वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक हाइपोथेटिकली कंजम्पशन कर्व बना रही हूँ। ये मैंने बना दिया कंजम्पशन कर्व। दिस वैल्यू शोज अस द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये हमें ध्यान रखना है कि ओरिजिन से जहाँ तक कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हो रहा है, द कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन, वी नो दिस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कंजम्पशन कर्व के स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहाँ पर दो अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम लिए हैं, y एंड y1, एंड हियर आई हैव टेकन द कंजम्पशन एट दीज लेवल्स ऑफ इनकम। ठीक है, ये इनकम है और ये कंजम्पशन है। इन लेवल्स ऑफ इनकम पर मैंने क्या लिया है, कंजम्पशन लिया है। वर्टिकल चेंज, वर्टिकल इज दिस लाइन, तो वर्टिकल चेंज, अ चेंज इज ऑलवेज न्यू माइनस ओरिजिनल। तो हमारे पास वर्टिकल चेंज क्या है, न्यू माइनस ओरिजिनल, दैट इज C1 माइनस C। हॉरिजॉन्टल चेंज क्या है, दैट इज Y1 माइनस Y। अब जब हम इस चेंज की बात करते हैं, दिस इज द चेंज इन इनकम, तो Y1 माइनस Y है वो क्या शो कर रहा है, इनकम का चेंज शो कर रहा है। ये किसका चेंज शो कर रहा है, कंजम्पशन का चेंज शो कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास आता है चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, एंड इफ यू रिमेंबर, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसके इक्वल होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व इज, कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से फिर आपका रेडी हो गया है। व्हाट इज नोन टू बी द स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। स्टूडेंट्स जनरली अपवर्ड स्लोपिंग लिखाते हैं, जो गलत है। व्हाट इज नोन टू बी द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, सॉरी, कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ से ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। इसी के साथ हमारा कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। I hope that you would have liked the video, you would have understood all the concept. यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।